Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Students, today I am going to discuss with you a topic from chapter number 21, cell cycle, and the topic of our discussion is cancer, uncontrolled cell division. First of all, you should know what are tumors. Tumor is an uncontrolled division of cells which causes formation of unwanted clone of cells and expand indefinitely, and this is called tumor. Students, tumor क्या होता है? Basically, cancers are types of tumors, and the tumor is uncontrolled division of the cells which may be localized in a part of a cell, a part of a body, or it may be spreading. So there are two types of tumors, benign tumor and malignant tumor. Benign tumors are non-cancerous or non-malignant tumors. These tumors are localized tumors, while malignant tumors are basically cancerous tumors. The topic of our discussion is cancer, and the cancer is basically malignant type of the tumor. Students, you should know that the process of the cell birth and death are carefully regulated, and how this process is regulated. This is regulated by controlled mitotic activities, but sometimes the control that regulates the cell multiplication breaks down and cell starts dividing in uncontrolled fashion, and such cells produces new cells that make a clone of unwanted cells, and such clone is termed as tumor. So what is benign tumor? Benign tumor is localized and doesn't spread to other parts of the body. It is the definition of a benign tumor. So benign tumors are non-cancerous, non-malignant, and they have little deleterious effects. Behaves like normal cells. When they interferes with normal cells and hormone-like secretions, then such tumors can cause adverse effects on the body. Otherwise, these tumors are non-deleterious. Malignant tumor, dangerous types of the tumors. Unwanted clone of cells that divide more rapidly and invade the surrounding tissues. Such tumors are termed as malignant tumors or cancerous tumors. They get into the body's circulatory system and they have numerous deleterious effects. They lead to death of the patient. Set up areas of the proliferation away from the site of original appearance. It means कि जिस जगह पर ये ट्यूमर बना हुआ होता है उस जगह से आगे आगे प्रोलिफरेट यानी फैलता जाता है और इस तरह से पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां तक फैल जाएगा जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है. स्प्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर, बिकॉज मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसर जो है वो स्प्रेड आउट होता है, तो स्प्रेड ऑफ द कैंसर इज थ्रू मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर. Cancerous cells divide rapidly and invade surrounding tissue, and this spread of tumor cells and establishment of secondary areas of the growth is termed as metastasis. So students, metastasis is एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैंसर जो है, ये जो कैंसरस ट्यूमर है ये फैलता है. यानी एक जगह पर जहाँ पर वो कैंसरस सेल्स थे, वो एक जगह पर ट्यूमर बना था, अब वहां से सेल डिवाइड करते जाएंगे और डिवाइडेड सेल जो होंगे वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो बॉडी के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, जस्ट डिवाइड होके जगह को घेरते जाते हैं. और इस तरीके से उनका डिवाइड हो के साथ वाले एरियाज में फैलता जाना और सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज, टर्शरी ग्रोथ एरियाज, इस तरीके से ग्रोथ एरियाज जो है वो आगे से आगे बढ़ाते जाना, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं. बेनाइन ट्यूमर के केस में ये आप देख रहे हैं कि एक लोकलाइज्ड ट्यूमर है जो रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स प्लेस है, जहां पर उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो उसी जगह पर है. ज्यादा से ज्यादा ये फैलेगा भी सही तो ये अपना साइज जो है, अपना वॉल्यूम जो है, बस उसी को इंक्रीज करेगा, लेकिन ये इस टिश्यू से बाहर की तरफ दूसरे टिश्यूज में, दूसरे बॉडी पार्ट्स में इन्वेड नहीं करेगा. बट इन द केस ऑफ कैंसर और मैलिग्नेंट ट्यूमर,
The cells are undifferentiated and divide rapidly and invade the other tissues, invade neighboring tissues and enter into the bloodstream and metastasize to different sites. Metastasize मतलब invade into different sites, मतलब rapidly divide करके आगे से आगे फैल जाना। यहाँ पर थोड़ा सा इनका डिफरेंस जो है वो राइट किया हुआ है। इसको आप डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ से पॉइंट्स उठा के आप इनकी प्रॉपर डेफिनेशन जो होंगी प्रिसाइज वो बना सकते हैं, या वैसे इनके डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। Benign tumors are small while malignant are large. Benign are slow growing and malignant are rapidly growing. Benign tumors are non invasive, मतलब ये नॉन इन्वेडिंग है, ये आगे से आगे दूसरे पार्ट्स में फैल नहीं जाते हैं, while malignant tumors invade the neighboring tissues. Benign tumors, the cells of the benign tumors are well differentiated, वो फिर भी differentiated होते हैं, लेकिन malignant tumor के जो cells होते हैं वो poorly differentiated होते हैं, undifferentiated होते हैं। इनके फैलने का तरीकाकार क्या है, ये लोकलाइज्ड ही रहते हैं, जिस जगह पर बने हैं उसी जगह पर रहेंगे। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये मेटास्टेसिस के थ्रू ये फैलता जाता है, फैलता जाता है। स्टे वेयर दे आर, लोकलाइज का मतलब क्या है, जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर ये बने थे उसी जगह पर रहेंगे। वाइल मेटास्टेसाइज क्या होता है, इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यूज। कांट इन्वेड or metastasize. Benign tumors can't invade or metastasize, while malignant tumor metastasize to other parts of the body. Students, here is an important question that how can you distinguish a cancerous cell from normal cell? What are the differences between cancerous and normal cells? Cancerous cells are less differentiated than normal cells. Cancerous cells exhibit rapid growth than normal cells because normal cells are having their proper controlled growth. उनकी ग्रोथ जो कि उनके चेक पॉइंट्स होंगे वो डिपेंड करेगा किस बॉडी का पार्ट है, उस हिसाब से उन्होंने ग्रो करना है। लेकिन कैंसर सेल्स में नहीं होगा, जिस भी पार्ट में कैंसर बना होगा उन्होंने जस्ट रैपिडली ही ग्रो करना। हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो इज इन कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो जो होती है वो हाई होती है, ग्रेटर होती है एक नॉर्मल सेल के निस्बत। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई इनका ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, वाजे होता है। मैनी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाला सेल जो कैंसरस जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली ग्रो करते हैं, इस हिसाब से हमें ये वाला ट्यूमर जो होता है वो दिन ब दिन फैलता हुआ बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स इन अदरवाइज नॉर्मल सेल्स इज इंडिकेशन ऑफ मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी क्या है कि इस तरह के जो कैंसरस ट्यूमर है उसका नॉर्मल सेल्स में उसका मौजूद होना, उसको हम मेलिग्नेंसी बोलते हैं। व्हाट आर द काजेज ऑफ कैंसर? वैसे तो कैंसर की काजेज स्टूडेंट्स काफ़ी सारी हैं, जिनमें हम बोलते हैं कि कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं वो काज करते हैं, और हमारी जो बहुत सारे फूड एडिटिव्स होते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, ये वो बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो रीजंस हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें जैसे रेडिएशंस हो गई, ड्रग्स हो गई, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हो गए, वो सब करते क्या है बॉडी में, तो बॉडी में मेन काज क्या होती है, उन सब की वजह से म्यूटेशंस हो जाती हैं। म्यूटेशंस आर द मेन काजेज ऑफ कैंसर्स। म्यूटेशंस इन सोमैटिक सेल्स, दिस इज द मेन काज ऑफ द कैंसर, and the number of the mutation is few as 3 to many as 20 mutations in genes that control the cell division. मेनली म्यूटेशंस जिन सोमैटिक सेल्स में किस जगह पर हों तो वो कैंसर काज करती हैं, उनकी जो बेसिकली सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले चेक पॉइंट्स हैं, जो जीन्स कंट्रोल करती हैं, उन जीन्स में चेंजेस हो जाए जिससे सेल जो है उसकी डिवीजन कंट्रोल ही नहीं होती, तो सेल अनकंट्रोल्ड फैशन में डिवाइड करना शुरू कर देता है। So mutations of somatic cells cause cancer, and number of the mutation is 3 to 20 mutations in genes that control the cell division. What are the consequences of such mutations? These mutations bring out two basic changes in the cancer cells. First, the metastatic cell break their contact with other cells and overcome the restrictions on the cell movement provided by the basal lamina and other barriers. And ultimately, metastatic cells can invade other parts of the body. First point कैसे आप समझेंगे students?
बेसल लैमिना का पता होगा तो आपको पता चलेगा। स्टूडेंट्स, बेसल लैमिना इज लेयर ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स व्हिच इज secreted by epithelial cells, and the function of basal lamina is to separate the organs. It lines the cavities of the organ. एक हिस्सा एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो येलो कलर के जो ये मेम्ब्रेनस जो ये स्ट्रक्चर है, इसको मिसलीडिंगली बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो ये बेसल लैमिला क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो एपिथेलियल सेल्स अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं, एक लेयर सिक्रीट कर देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के सेल्स के बारे में। वो लेयर क्या होती है, ये बेसिकली बैरियर होता है टिश्यूज के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कोई भी ऑर्गन है, उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये कैविटी है कोई, उसके बाद ये ब्लड वेसल है, इसकी ये एपिथेलियल सेल्स हैं। तो इनके इर्द गिर्द जो यहाँ पर बेसल लैमिना होगा, जैसे यहाँ पर लेयर सिक्रीट हुई होगी, यहाँ पर लेयर सिक्रीट हुई हुई है, ये जो येलो कलर के सेल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये बैरियर बन जाएंगे। कोई भी चीजें जो ट्रांसपोर्ट होगी मटेरियल्स की, वो इस पार्ट से इस पार्ट तक वो नहीं होगी। तो ये इसमें मोस्टली क्या होता है, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं, यानी वाटर और कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जस्ट उनकी मूवमेंट होती है, बाकी चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट नहीं होने दिया जाता। तो बेसल लैमिना इस सेंस में इम्पोर्टेंट है कि ये कैविटीज ऑफ द ऑर्गन्स को लाइन अप करते हैं, ऑर्गन्स को जो होता है उनकी जो बाहर वाली जो जितने भी स्पेसेस होती हैं इर्द गिर्द वाली, उनसे ये सेपरेट कर देते हैं, ताकि जो जितना भी मटेरियल्स हैं वो इधर उधर जो है वो सारा सेल के इंटरनल मटेरियल जो होते हैं वो इंटैक्ट ज्यादा ना रहे, वो इधर उधर मूव ना कर जाएं दूसरे पार्ट्स में। तो कैंसर में होता क्या है कि सेल जो होता है उसका जो ये बेसल लैमिना है, ये वाला ये जो कंटेक्ट है बेसल लैमिना वाला, ये लॉस्ट हो जाता है। जैसे ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर यहाँ से स्प्रेड आउट हो रहा है, यहाँ से क्या है, ये जो आप एक बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना जिसको हम कह रहे थे, वो इस जगह से खराब हो चुका हुआ है, खत्म हो चुका है। तो बेसल लैमिना का जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, जिससे ये सेल जो होगा ये यहाँ से इस बेसल लैमिना वाली जगह को क्रॉस करके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आएगा। वहां से उसके इर्द गिर्द जितने और ऑर्गन है, जैसे ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में भी यहाँ पे प्रोलिफरेट कर जाएगा, इधर फैल जाएंगे, और इस तरीके से ये ट्यूमर जो होगा, ये ट्यूमर सेल, ये कैंसरस सेल्स हैं, ये यहाँ पर मजीद ग्रोथ कर करके डिवाइड हो के ये इस पूरी ब्लड वेसल को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे और आगे से आगे फैलते जाएंगे। तो इस तरीके से ये नुकसानदेह होते हैं। Now come to our first point. The metastatic cells break their contact with other cells. दूसरे सेल से उनका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, यानी जो मेटास्टेटिक सेल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल कैंसरस सेल्स जो ये हैं, ये सेल ये एक नॉर्मल सेल है, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये नॉर्मल सेल्स हैं। इन नॉर्मल सेल में से जो ये कैंसरस सेल बनेगा, ये कैंसरस सेल्स क्या होता है, ये इससे अपना कांटेक्ट खत्म कर देता है, ये उससे कांटेक्ट खत्म कर देता है। मतलब क्या है कि उसकी तरह बिल्कुल फंक्शन नहीं करने लगता। जैसे ये सेपरेट हो जाता है तो ये खुद ही इमेच्योर सेल्स, नए से नए सेल्स को डिवाइड कर करके यहाँ पे इसने ये मैस ऑफ सेल्स बना दिया। और उसके बाद क्या हो जाता है कि ओवरकम कर लेता है, मतलब क्रॉस कर जाता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल मूवमेंट, जो कि बेसल लैमिना की वजह से होती है, उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को, उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है, जिसके नतीजे में या और जितने भी बैरियर्स होते हैं एक सेल के, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक जो होते हैं, उन सबको क्रॉस करके आगे से आगे प्रोलिफरेट कर जाते हैं। और दूसरा रिजल्ट क्या होता है इन म्यूटेशंस का, पहला तो रिजल्ट ये है कि जितने भी सेल्स के बैरियर्स हैं या बेसल लैमिना की जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको क्रॉस करके मेटास्टेटिक सेल का जो है वो आगे से आगे प्रोलिफरेट करते हैं। दूसरी क्या है, दे प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली, और ज्यादा तादाद में, बार बहुत ज्यादा न्यूमरसली ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं, विदाउट कंसीडरिंग द चेक्स और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का जो मेटास्टेटिक मेटास्ट्रेस माइटोसिस में सॉरी जो चेक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कितनी कंट्रोल्ड डिवीजन्स करनी है, मतलब फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए प्रिसाइज्ड होता है कि पूरी लाइफ टाइम में फलां सेल जो है उसने इतनी डिवीजन्स करनी है। किसी ने फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स करना है, किसी ने 100 टाइम्स करना है, किसी ने 1000 टाइम्स करना है, तो ये प्रिसाइज्ड होता है कि पूरी लाइफ में वो सेल कितना डिवाइड करेगा। तो इस केस में क्या होता है कि नंबर वन क्या होता है कि म्यूटेशंस की वजह से सेल जो होते हैं वो अपने दूसरे सेल से कांटेक्ट उनका खत्म हो जाता है नॉर्मल सेल से, और वो खुद ही बेसल लैमिना की रिस्ट्रिक्शन और बाकी जितने भी बैरियर्स होते हैं सेल्स के, उनको क्रॉस करते रहते हैं।
और सेकेंडली क्या होता है कि वो अनलिमिटेडली ग्रो करते रहते हैं। जितने भी चेक्स होते हैं, जो कंट्रोल्स होते हैं माइटोटिक डिवीजन्स के, उन सब कंट्रोल्स जो होते हैं उनका इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता और ये अनलिमिटेडली ग्रो करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।